Hello everyone, your host and host Neha is back again. In this series of teaching you vocabulary words using the mnemonic technique, let's learn a few more words together. The first word of the day is rage, R-A-G-E. Rage means extreme anger. किसी चीज पे बहुत गुस्सा आना. Now using the mnemonic technique, can you see this word age here? हिंदी में कहते हैं उम्र हो गई. एंड आप लोगों ने सुना होगा जैसे जैसे हमारे दादा परदादा इन लोगों की एज होती जाती है, दे स्टार्ट बिकमिंग रियली इरिटेंट, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इन्हें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है. सो जैसे जैसे बंदे की एज हो जाती है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है. दिस इज हाउ वी कैन लर्न दिस वर्ड रेज. रेज मीन्स गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर, annoyance. Now this is also a root word, R-A-G-E, R-A-G-E, rage, that means anger. So this root word can help you recognizing all the words like umbrage, rageous. In any of the word where you will see R-A-G-E, you will be able to understand from now onwards that it is somewhere or the other related to anger. Like look at this word umbrage. The moment you will see rage here, जैसे ही आपने rage देखा, like I taught you just, कि जहां पर भी आपको रेज दिखे, आपको इस रूट वर्ड का मतलब है एंगर. समझ जाना है दैट द वर्ड इज समवेयर और द अदर रिलेटेड टू एंगर. सो अम्ब्रेज ऑल्सो मीन्स एक्सट्रीम एनोयंस, इरिटेशन, जो कि गुस्से के ही सिम्टम्स हैं. किसी चीज पे एनोयंस, किसी चीज से गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, ये सब गुस्से के सिम्टम्स हैं. सो अम्ब्रेज ऑल्सो मीन्स रिजेंटमेंट, एग्जैक्ट annoyance, irritation, resentment can also be used for this. गुस्सा. So अभी हमने क्या सीखा? That there is a root word named R-A-G-E that means anger. So in whatsoever word we will see this root word rage, we can conclude that the meaning of this word is somewhere or the other related to anger, gussa, annoyance. Like umbrage also means annoyance, gussa, irritation. There's one more word, rageous, that is used as an adjective. मतलब वो इंसान जो गुस्से वाला है, a person that is full of anger, that has a resentful nature. So here rageous also means somebody who has a lot of anger in him or her. Now the next word of the day is B-A-N-D-I-T. B-A-N-D-I-T. Bandit means somebody who is a thief or a robber. कोई चोर है, उसको हम bandit भी कहते हैं. Now the mnemonic technique to learn this word bandit is, when we pronounce this word bandit, थोड़ा थोड़ा ये word पंडित से मिलता हुआ लग रहा है. No offense, it is not to harm anybody's sentiments, it is just an example कि मेरे घर के पास एक टेम्पल है एंड उस टेम्पल का पंडित बहुत बड़ा चोर है. This is how we can learn it. Bandit, पंडित means robber, somebody who is a thief, चोर, जो पैसे चुरा ले. So let's revise once again. Rage का क्या मतलब था? बहुत गुस्सा आना. Rageous, umbrage भी इसी से related थे. Next we have bandit. Bandit means robber. Next word we have remiss. Remiss means negligent. और careless. जैसे जनरली बच्चे होते हैं जो कहीं पर भी सामान छोड़ के आ जाते हैं and they are not much careful. It is opposite of the word careful. Somebody who is very cautious, हर चीज का ध्यान रखता है, like mothers or parents we can say. उनके opposite होते हैं बच्चे जो चीजों का ध्यान नहीं रखते, बड़ा careless attitude होता है. That attitude is also called remiss. Now let's come to the mnemonic technique to learn it. Remiss. Can you see this word miss in remiss? Miss. एक जना जो हर सामान को कहीं मिस करके आ जाए, खो दे, वो क्या होगा? वो केयरलेस होगा, नेग्लिजेंट होगा. So this is how we can learn it. Remiss itself is having miss word in it, and when a person misses everything, like the person is not very careful about his or her possessions, belongings, then that person is a negligent person. Negligent है, careless है, और हम क्या word use कर सकते हैं? Remiss है.
Next word in the row is hideous. Hideous. Hideous means very ugly, जो दिखने में बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है. ब्यूटीफुल का ऑपोजिट है. ब्यूटीफुल के लिए हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप लोग सारी वीडियोस में हमें फॉलो कर रहे हैं, तो एक वर्ड सिखाए थे. इनफैक्ट रादर एक वीडियो में हमने 6-7 वर्ड सिखाए थे to substitute this word beautiful. I hope you all remember it. I want you all to write all those words in the comment box. मैं देखना चाहूंगी कितने लोग लर्न कर रहे हैं, जिसमें से एक वर्ड मैं अभी रिवाइज करा रही हूँ जो थोड़ा सा मुश्किल था, पल्क्रीट्यूडिनस. बाकी इजी वाले मुझे लगता है आपको याद होंगे. पल्क्रीट्यूडिनस मतलब था वेरी ब्यूटीफुल. सो ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड ब्यूटीफुल और पल्क्रीट्यूडिनस इज hideous. मतलब somebody who is not pulchritudinous, somebody who is not very beautiful, or he or she is ugly. सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं दिखता. याद कैसे करेंगे? देखिए निमोनिक टेक्निक जो मैं आपको याद करने के लिए इसमें से कुछ बना पाई, वो मुझे दिखा वर्ड हाइड. और हाइड से मैं एक कहानी बना पाई कि अगर हमारी कोई चीज अच्छी नहीं है, कोई हमारा बिटर ट्रूथ है, कोई या लेट्स से किसी के हाथ अच्छे नहीं है या पैर अच्छे नहीं है, तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं. लाइक लेट्स से देयर इज अ गर्ल नेम्ड रीटा. उसके पैर अच्छे नहीं है, अगली है बिल्कुल, तो वो अपने पैरों को हमेशा हाइड करने की कोशिश करती है. या लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. मेरी लाइफ का कोई अगली, बैड, बिटर ट्रूथ है, सच्चाई है, जो कि जब भी मैं याद करती हूँ आई फील बैड. तो मैं लोगों से उस अगली सच्चाई को हाइड करने की कोशिश करूंगी. कैसे याद करेंगे? हिडियस मीन्स अगली. हिडियस में ही छुपा हुआ है वर्ड हाइड. जो चीज भी हम हाइड करने की, उन्हीं सब चीजों को कोशिश करेंगे जो अगली होंगी, जो अच्छा हमारे जिंदगी का सच नहीं होगा. दैट ऑल थिंग्स वील ट्राई टू हाइड. सो हिडियस मीन्स हाइड करना. हिडियस मीन्स something that is very ugly. and याद कैसे करेंगे? with this mnemonic technique, hide. Next word in the series is exigent. exigent. Exigent means something that is very urgent, जिस चीज के लिए हमें बहुत ज्यादा urgency है. like for example, I want to say there is an urgent requirement of teachers in our school. So instead of using this word urgent, I can also make this sentence by saying there is an exigent requirement of teachers in our school. So exigent means urgent. Now let's come to the mnemonic technique to learn this word exigent. Exigent word जब मैं बोल रही हूँ तो देखने में मुझे कुछ exigent, accident सिमिलर लग रहा है. बोल के देखिए, एक्सीजेंट, एक्सीडेंट, सेम सा लग रहा है. दिस इज हाउ वी कैन लर्न इट. इट इज जस्ट अ टेक्निक टू मेक यू मेमोराइज दिस वर्ड एक्सीजेंट. एक्सीजेंट इज समवेयर और द अदर सिमिलर टू एक्सीडेंट. जैसे ही एक्सीडेंट होता है, अर्जेंसी होती है, लोग जल्दी से अर्जेंट मोड पे एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनके कंसर्न घर वालों को बुलाते हैं. सो जब एक्सीडेंट होता है तो इंसान अर्जेंसी मोड पे आ जाता है, इमरजेंसी मोड पे आ जाता है. देयरफॉर एक्सीजेंट मींस अर्जेंट. आई रिपीट वंस अगेन, एक्सीजेंट और एक्सीडेंट सिमिलर लग रहे हैं. जैसे ही एक्सीडेंट होता है हम अर्जेंट मोड पे आ जाते हैं. देयरफॉर एक्सीजेंट मींस अर्जेंट. दिस इज हाउ वी कैन लर्न इट. नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑफ द सीरीज इज एडिफाई. एडिफाई का मतलब होता है किसी को एडुकेट करना, पढ़ाना. Now here, how are we going to remember this word edify? In the word edify itself, we can see this word ed. या ed या edu is the short form of education. ऐसे हम याद कर सकते हैं. ed, edu, education की short form है. Edify means to educate somebody, किसी को पढ़ाना. And the next word of the series is hooligan. Hooligan. Hooligan कौन होता है? Somebody who is a villain. शैतान है, जो हर मूवी में एक ना एक शैतान होता है, hooligan होता है, जो नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता है. He or she is being called hooligan. इंग्लिश में हम अगर कोई लड़की नेगेटिव कैरेक्टर है तो वैम्प भी कहते हैं, वैम्पायर. इसे हम hooligan कह सकते हैं. अब इसको याद करने के लिए नेमोनिक टेक्निक क्या हम निकाल सकते हैं? मुझे इस वर्ड में एक वर्ड दिखा, गन छुपा हुआ, GAN.
मैं इसको GUN गन की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। एंड अब आप खुद रिलेट कर सकते हैं विलन के पास क्या होती है, गन। दिस इज हाउ वी कैन लर्न इट। हुलीगन में ही वर्ड था गन, गन किसके पास होती है, विलन के पास। सो हुलीगन इज अ पर्सन हु प्लेज अ नेगेटिव रोल और he or she is a villain. Next word in the series is LASSITUDE, lassitude. Lassitude क्या मतलब होता है, lassitude means होता है a state of physical and mental relaxation, lethargy. जब हम थोड़ा आलस फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। इधर आगे बढ़ने से पहले कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो हमारी नेमोनिक टेक्निक से वीडियो थी, मैंने आपको कुछ वर्ड सिखाए थे फॉर अ पर्सन हु इज लेजी। आई होप आप सबको याद होंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट दोज वर्ड्स इन द इनबॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेजें। लैसिट्यूड को हम जनरली बोलते हैं वो लोग जो आलसी हैं थोड़े से। हिंट दे रही हूं, इंडोलेंट, इसके साथ 2-3 वर्ड्स और सिखाए थे लास्ट वीडियो में। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। नाउ लेट्स कम टू द नेमोनिक टेक्निक टू लर्न दिस वर्ड लैसिट्यूड। बहुत अच्छा वर्ड दिखा मुझे इसमें LASSI, लस्सी। जैसे ही हम लोग बढ़िया सा लंच करते हैं, लस्सी पी लेते हैं, तो क्या आती है, आलस, नींद। लैसिट्यूड मीन्स a state of physical and mental weariness where we are not active. Physical and mental inactiveness भी हम कह सकते हैं। जब हम एक्टिव नहीं है, थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, इंडोलेंट फील कर रहे हैं, आलस फील कर रहे हैं। दोबारा से एक बार याद करते हैं। लैसिट्यूड मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेयरनेस और इनएक्टिवनेस वेयर वी डोंट फील मच एक्टिव। जब हम बहुत आलस फील करते हैं, आलस के लिए हम और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, दैट इज लेथार्जी। एंड जो बंदा फुल ऑफ लेथार्जी है, ही और शी इज कॉल्ड लेथार्जिक और इंडोलेंट। सो लस्सी पीते ही क्या आ जाती है, आलस। सो लैटिट्यूड मीन्स आलस। नेक्स्ट इन द रो इज एक्सटर्पेट, EXTIRPATE। एक्सटर्पेट मीन्स टू इरेडिकेट समथिंग और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को तो पूरी तरीके से खत्म करना, डिस्ट्रॉय। सो अब देखिए, इरेडिकेट कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना को हम एक्सटर्पेट कहते हैं। जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा मोटे हो रहे थे मेरे फादर, उन्होंने एक्सरसाइज की और अपना सारा फैट इरेडिकेट कर दिया या कंप्लीटली खत्म कर दिया। इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया, कम कर दिया या पूरी तरह खत्म कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द mnemonic technique to learn it. Here exter word is somewhere or the other related to extra, and here this word पेट मतलब पेट, तो एक्स्ट्रा पेट निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, वी ट्राई ऑल द एफर्ट्स टू कंप्लीटली इरेडिकेट इट। दिस इज अ mnemonic टेक्निक टू लर्न इट। एक्सटर्पेट मतलब एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट जैसे ही आ जाता है हम क्या करते हैं, हम उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सटर्पेट मीन्स टू इरेडिकेट और टू कंप्लीटली destroy something. This is how we can learn this word extirpate. Thank you so much guys. Keep watching our videos and yes, keep learning and keep loving us the way you are. Thank you so much. God bless.